Hi students, today we will continue with your topic electrostatics. This is your fifth lecture. My name is Ratnaprabha Patil. In last lecture you have studied electric potential and potential energy along with expression for potential energy. This expression of potential energy, which is U R is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R. This we will use to understand the concept of potential. The same equation I have written in the first point, which is UR is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R is the equation of potential energy of a two particle system separated by distance R. Now we can write this equation as follows in both the ways, that is UR is equal to Q1 divided by 4 pi epsilon naught R Q2, which is equal to Q2 divided by 4 pi epsilon naught R Q1. So if you take one equation from this, that is Q, or you can generalize this equation just like this, वी आर इज इक्वल टू जो ब्रैकेट का टर्म है अगर आपने लिखा देन यू कैन राइट इट एज Q1 और Q2 की जगह आप लिख सकते हो Q, राइट. सो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R will be the electric potential and it is depends on charge Q and location of distance R from it. Okay, now you can write then potential energy का equation UR is equal to V1R Q2 which is equal to V2R Q1. So यहाँ पे V1 and V2 क्या है? Potential of charges Q1 and Q2 separated by distance R. Okay, so इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप किस तरह से लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज Q. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या बनेगा? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज V डिवाइडेड बाय U, सॉरी V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय Q, right? So electrostatic potential difference between any two points in an electric field can be written as V2 minus V1 which is equal to U2 minus U1 divided by Q which is equal to dW divided by Q, which is work done or change in potential energy per unit charge to move the charge from point 1 to 2. So you can see in this diagram that this is one charge Q plus Q and this is Q0. Then if you can consider this is separated by distance R. So if you can consider V1 is the potential at charge plus capital Q and V2 is the potential, electric potential at charge plus Q0. So इन दोनों का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा? वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट charge. So this is all about concept of potential. Now we will start with the relation between electric field and electric potential. You can see here one diagram in which at point O 1 plus Q charge is kept. So if this is a charge, it will have some electric field, right? So
Now we can consider point 1, that is M. From here we will, आप कंसिडर करो पॉइंट M पे और एक चार्ज प्लस Q रखा है and we are going to move that charge from point M to N. So the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, दैट इज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड. तो आपको डायग्राम में दिख रहा है दैट इज ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, रेडियली आउटवर्ड. ओके, हमने क्या किया, Q फिक्स्ड है, Q प्लस जो चार्ज है O पॉइंट पे वो फिक्स्ड है. दूसरा चार्ज प्लस Q हम ले रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, M to N मूव कर रहे हैं, विच विल हैव, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मूवमेंट का कितना है, dx. dx क्या है, dx इज द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस. dx क्या है, डिस्टेंस, जहाँ जितना हमने क्या किया, एक चार्ज को M to N मूव किया, राइट. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट M इज अलोंग OM. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, OM है, बिकॉज इट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे वर्क डन क्या बनेगा, वर्क डन का इक्वेशन आपको पता है. आपने क्या किया, चार्ज को मूव किया स्लाइटली, स्मॉल डिस्टेंस dx. तो यहाँ पे वर्क डन क्या बनेगा, स्मॉल, दैट इज dw, विच इज इक्वल टू, वर्क डन का इक्वेशन क्या होता है, F इंटू dx, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने क्यों दिया, इट इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज जो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा. ओके, तो यहाँ पे फोर्स आप क्या लिखोगे, E dx. ओके, सो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज dw is equal to dv, which we have studied in concept of potential, that is dw क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज आप V2 माइनस V1 की जगह क्या लिख सकते हो, dv, दैट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स M एंड N. तो dw वर्क डन क्या है, E dx, दैट इज माइनस E dx, जो आप यहाँ पे लिख सकते हो dv इज इक्वल टू E dx. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या बनेगा, E इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dx. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the negative of the potential gradient at that point. यहाँ पे मैंने निगेटिव साइन नहीं दिया, बट वहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन है. dv by dx क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, जो आपने लास्ट ईयर स्टडी किया, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो दिस इज ऑल अबाउट relation between electric field and electric potential. Electric field is equal to change in potential, electric potential divided by displacement, और आप क्या बोल सकते हो, negative of the potential gradient at that point. Okay, now we will see one numerical प्रॉब्लम जो आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट अगेन. दैट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट A in space is given as 4 into 10⁵ volt. सो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 microcoulomb फ्रॉम infinity to the point A. And second, does the answer dependent on the path along which the change is brought. So पहले हम क्या करेंगे,
वर्क डन फाइंड करेंगे। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। देखो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज वर्क डन क्या बनेगा, इफ दिस इज dV तो ये Q इधर Q जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, राइट, या फिर Q0 इंटू V। तो गिवन क्या है, पोटेंशियल ए का पोटेंशियल एट कितना दिया है, 4 इंटू 10⁵ वोल्ट, और चार्ज 3 माइक्रो कूलोम, विच वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कूलोम, दैट इज 3 इंटू 10⁻6 कूलोम। ओके, सो आपको वर्क डन फाइंड करना है। चार्ज वी आर मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, सो आपका वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू Q0V। तो आपको वैल्यूज पता है, 3 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁵ विच इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻1। सो ओमेगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1.2 जूल। सो और आपने जब एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा है दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। चार्ज आप कहाँ से भी मूव कर सकते हो टूवर्ड्स अनदर चार्ज, तो जो वर्क डन होगा इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ विच वी हैव टू चेंज or to move the charge from one point to another. Okay, so next numerical is, problem is, if 120 joule of work is done in carrying a charge of 6 coulomb from a place where the potential is 10 volt to another place. Okay, सो आप दो पॉइंट्स कंसिडर कर लो, VA एंड VB। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो आप समझ लो VA का पोटेंशियल दिया है और VB का नहीं दिया, और वर्क डन दिया हुआ है दैट इज 120 जूल एंड चार्ज दिया है 6 कूलोम। सो यू आर नोइंग द फॉर्मूला दैट इज V2 माइनस V1 इज इक्वल टू TW divided by Q, that is VB minus VA is equal to work done AB divided by Q0, right? So अब VB की जगह क्या लिखोगे, V minus 10 which is equal to 120 divided by 6. So आपका इक्वेशन क्या बनेगा, V minus 10 is equal to 20. सो आपका पोटेंशियल कितना आएगा, 30 वोल्ट। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अ डाइपोल एंड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो इसमें से 1.1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, डाइपोल का मतलब क्या होता है, 2 पोल्स। ओके, सो ये चार्ज कौन से है, पॉइंट चार्जेस है। ओके, और आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो दैट इज एट पॉइंट O वी हैव केप्ट वन चार्ज प्लस Q, ओके, एंड अनदर चार्ज, जो पॉइंट चार्ज आप ले रहे हो दैट इज यूनिट पॉइंट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच वी आर moving from infinity to point O. Okay, now, okay, so you can see in the diagram O and A, these are 2 points which is separated by distance R. Okay, this is plus Q charge and another charge which we are moving from infinity towards point O, लेकिन वो आपको अप टू पॉइंट A मूव करना है, मतलब आपको वो चार्ज A तक, पॉइंट A तक ही लेके आना है, उसके आगे नहीं। ओके, सो फॉर दैट
आप यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हो, दैट इज वी आर गोइंग टू डिटरमाइन potential at point A at a distance r from plus charge q, that is जो पोटेंशियल आपको कहाँ का फाइंड करना है, ए पॉइंट का, जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है फ्रॉम पॉइंट O, जहाँ पे क्या है प्लस q पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है। ओके आपको ये समझ में आया। देन नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A is amount of work done per unit positive charge which is displaced from infinity to point A। so यहाँ पे work done क्या होगा, work done is electric potential at point A is the amount of work done per unit charge। तो आपने इक्वेशन पढ़ा है इन, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके और वो कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो आप डिस्प्लेस कर रहे हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। सो आपको ये भी पता है जो आपने अभी भी पढ़ा, दैट द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ विच वी चूज, मतलब आप पॉइंट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं से भी मूव करो, उसका वर्क डन क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो वी विल चूज आवर कन्वीनियंट पाथ। तो हमने कौन सा कन्वीनियंट पाथ लिया, आपने ओ ए ये लाइन है एक्सटेंड की, ओके और आपने एक पॉइंट एम लिया, दैट इज एन इंटरमीडिएट पॉइंट। ओके तो m का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O कितना है, x है। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे जाएगा वो, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। सो यहाँ पे m क्या है, m इज एन इंटरमीडिएट पॉइंट वेयर OM is equal to x. Now electrostatic force on unit positive charge at m is, तो आप ये कूलोम्स लॉ से फाइंड कर सकते हो, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे Q1 Q2 लिखते हैं ना हम, लेकिन यहाँ पे हमने जो दूसरा चार्ज लिया है जो m पॉइंट पे है वो कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसकी वैल्यू क्या है 1। सो आप 1 लिखो या ना लिखो, देयर इज अ नो डिफरेंस। सो हियर दिस फोर्स इज अवे फ्रॉम द पॉइंट O। ओके तो अब हम क्या करेंगे, we are going to displace this unit positive charge from point M to N by distance dx। तो आपका वर्क डन क्या बनेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल, दैट इज dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx। इट इज़ बिकॉज फोर्स का डायरेक्शन और आपके मूवमेंट का, चार्ज का जो मूवमेंट हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। सो वी कैन राइट हियर माइनस एफ डी एक्स। सो अगर आपको टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। जो हमने क्या किया था, एक चार्ज है, हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। सो आप इन्फिनिटी टू आर, ये आपके क्या बन गए, लिमिट्स, माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो एफ की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आगे वाला, क्यू कांस्टेंट है
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है वो ब्रैकेट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स infinity to r x raised to -2 dx। ओके, तो x raised to -2 का इंटीग्रेशन होता है -1/x। सो आपका इंटीग्रेशन बना -1/x। अगर आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपका नेक्स्ट इक्वेशन आएगा ओमेगा इज इक्वल टू -q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/infinity। सो यहाँ पे ये निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, दैट इज यू हैव टू कट इट। इट इज़ बिकॉज अपने लिमिट्स जब पुट किए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और माइनस साइन अगर बाहर आएगा तो ये बनेगा प्लस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/infinity। तो 1/infinity 0 होगा तो आपका वर्क डन का इक्वेशन आएगा वर्क डन इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन इन दिस इक्वेशन जो मैंने और इंटीग्रेशन जो मैंने सॉल्व किया, ये आपके बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है, you can check it in your book। okay, so you are knowing that V is equal to W, that is by the definition of electrostatic potential at point A due to charge Q। आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to work done which is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught R। okay, if charge is positive जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा। इफ चार्ज इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा। इफ अगर आप इस V इज इक्वल टू W इस इक्वेशन में R की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स the electrostatic potential is 0 at infinity। मतलब दो चार्जेस आप पॉइंट O और A पे जो रख रहे हैं या फिर इन्फिनिटी से मूव कर रहे, जब तक उनमें फाइनाइट डिस्टेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देयर शुड नॉट बी इनफाइनाइट डिस्टेंस। इफ आपने क्या किया, before we have took the convenient path that is OA। अगर आप कोई भी पाथ लोगे और उसका डिस्टेंस अगर R है फ्रॉम प्लस चार्ज Q जो पॉइंट O पे रखा है अगर सेम है तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अगेन विल बी सेम इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। जो आपके बुक में दिया है दैट फॉर एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस R from the point charge Q the value of V is the same and is independent of direction of R, and due to this you can say that electrostatic potential due to a single charge is spherically symmetric। now you can see here that अब जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर चार्ज कांस्टेंट है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट होता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन सो V क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। तो E क्या बनेगी, E इज इक्वल टू 1/R स्क्वायर जो आपके ग्राफ में दिया हुआ है। अगर आप इसका वेरिएशन फाइंड करोगे अलोंग दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड electric potential with the distance। It is because
they are inversely proportional, that is V is inversely proportional to R or E is inversely proportional to 1 upon R square, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ओके, सो वी विल सी one numerical, that is problem based on this point, which is a wire is bent in a circle of radius 10 centimeter. It is given a charge of 250 microcoulomb which spreads on it uniformly. What is the electric potential at the center? So यहाँ पे चार्ज क्या दिया हुआ है, Q is equal to 250 microcoulomb, which we can convert it into coulomb, that is 250 into 10 raised to minus 6 coulomb. R is 10 centimeter, that is 10 raised to minus 1 meter. So V is equal to, आपको फाइंड करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो आपका इक्वेशन बनेगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R विच इज इक्वल टू, अभी ये सर्कल है येट आपको यहाँ पे एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया वेयर मैंने आपको क्या बोला, दैट इज फॉर एनी पॉइंट एट डिस्टेंस R from the point charge Q, the value of potential, the value of V, that is electric potential, is same, and that is why electrostatic potential due to single charge is spherically symmetric, and due to that we can solve the problem of circle also. तो कहाँ पे भी डिस्टेंस R हो, अगर पॉइंट चार्ज उसके सेंटर में रखा हुआ है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा. सो एंड ड्यू टू दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, दैट इज आपको Q की वैल्यू पता है, Q इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 इंटू 250 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू माइनस 1. ये 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 कहाँ से आया, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, ये आंसर आएगा, दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ टू 9. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, दैट इज electric potential V is equal to 2.25 into 10 raised to 7 volt. Okay, this is all about your 5th lecture. So we will see in next lecture, that is electric potential due to an electric dipole. Okay, that is next point from your book. Thank you.